میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ادھر لگا لیں, یہ پیچھے ٹک ٹک ڈھونڈوں. یار اتوں روکو گڈی نو نا, یہ چنچی گزرے تو پھر میں بتاؤں نا. یہ پی ٹی آئی والوں کی چنچی ہر جگہ ٹک ٹک کر رہی ہوتی ہے یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میڈیا سے میری استدعا ہے کہ اتنا ٹائم آپ صبح آتے ہیں, ریکارڈنگ کرتے ہیں, پھر آپ کے ساتھ ایک المیہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی اتنی محنت ضائع ہو جاتی ہے, وہ میڈیا پہ چلتی نہیں ہے, سوشل میڈیا پہ چل جاتی ہے. تو میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, برائے مہربانی حفاظتی بند باندھ لیں. کسی وقت بھی حکومت ناہموار ہو سکتی ہے. بادلوں میں پھنس گئے, حفاظتی بند باندھ دیے ہیں, ناموار ہو جائے گی, یا قریب جو ایئرپورٹ ہوگا اس پہ اتر جائیں گے. اگر پائلٹ عقل مند ہوا تو قریب ہی ایئرپورٹ پہ جہاز کو اتار لے گا کہ یہ جہاز آگے منزل پہ جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. برائے مہربانی حفاظتی بیلٹ باندھ دیں. کسی وقت یہ حکومت ناہموار ہو سکتی ہے. جی پائلٹ استعفیٰ دے کے تو چھلانگ تو نہیں لگا سکتا, جہاز کے ساتھ ہی نیچے جائے گا, اس کو لینڈنگ کروائے گا اور پھر محفوظ ہاتھوں میں جہاز چلا جائے گا. پھر وہ ٹیک آف کریں گے نئے سرے سے, رن وے کو ٹھیک کریں گے. رن وے بھی خراب ہو گیا نا, کافی دفعہ اس پہ لینڈنگ ٹھیک نہیں ہوئی. میرا خیال اس سوال کا جواب اگر مریم اورنگزیب جو پارٹی کی انفارمیشن سیکرٹری ہے وہ دے. آپ لوگوں نے تو مجھے ہر ایک کا انفارمیشن سیکرٹری بنا لیا ہے. مریم نواز کو ابھی تک کوئی نوٹس ملا نہیں ہے. ویسے بھی وہ عادی ہو چکی ہیں, ایک ہفتے نوٹس نہ آئے تو وہ پوچھتی ہیں کہ حکومت سو تو نہیں گئی ہے. یار چیئرمین نیب بیچارہ پھنسا ہوا ہے. ایک طرف سے میڈیا اس کو پریشر دے دیتی ہے. عمر کا وہ حصہ ہے کہ 70-72 سال ہو گئے ہیں, تو اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. آپ اتنا پریشر نہ دیا کریں. اس عمر میں دیکھنا بندہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, نروس سسٹم میں بریک ہو جاتا ہے. ہمارے پریشر کی بات نہیں, ان کو پتہ ہے یہ سیاسی لوگ ہیں. چیئرمین نیب کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے خلاف میٹیریل مجھے کون دے رہا ہے. چیئرمین نیب کو یہ بھی پتہ ہے کہ دوسری طرف سے رات کو اس کو بلا کے کون کہتا ہے کہ اس کے خلاف مقدمے کرو, پشاور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف جاؤ. وہ بیچارہ درمیان میں چیئرمین نیب پھنس چکا ہے. بچے بھی کہتے ہیں بچی اس نوکری کو چھوڑیں, عزت سے آپ جسٹس رہے, ایبٹاباد کمیشن میں آپ رہے, اور اب آپ ادھر آتے ہیں گھر بھی پریشان رہتے ہیں, رات کو سونے کے لیے ہوٹل مانگتے رہتے ہیں. چیئرمین نیب کو ابھی کچھ دنوں کے لیے آپ بھول جائیں, مگر یہ بھولنا ایسا نہیں. اسٹے ود اس پروگرام کا اگلے ایسا چلتا رہے گا. ایک وقفے کے بعد بات یہ ہے کہ ایک طرف حکومت کہتی ہے میں نے نہیں دوں گی, دوسری طرف سے مریم صاحبہ یا نور یا خود سے کہتی ہے ہم نہیں دیں گے حکومت کو. اب ایشو یہ ہے کہ سینٹ کا جب الیکشن آتا ہے تو دونوں مل کے ایک دوسرے کہنے لیتے ہیں, 3 سیٹیں لیتے ہیں اور چپ کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ ایک طرف تو آپ ارطغرل غازی کی طرح دونوں جماعتیں تلوار نکال کے بیٹھی, دوسری طرف آپس میں سیٹلمنٹ بھی کری. اس طرح دیکھیں یہ جو اپنی اپنی سیٹیں تقسیم ہو گئی, یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نیک شگون تھا. ورنہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون چاہتی تو پی ٹی آئی کے سارے ووٹس اپنے بغلوں سے نکال سکتی تھی. چونکہ میثاق جمہوریت بھی ایک لکھا گیا اور یہ بتایا گیا ایک تحریک ہے کہ ووٹ کو عزت دو, تو پی ٹی آئی کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر مقابلہ ہوا تو جتنی سیٹیں پاکستان مسلم لیگ نون نے ٹکٹس دی ہیں سارے لے کے چلے جائیں گے. امن سے الیکشن ہو گیا, پیسہ نہیں چلا. باقی صوبوں کے حالات دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. سندھ اور پنجاب کا الیکشن جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو والا ہو رہا ہے, تو وہ ایک اچھا پروسیس تھا, اس میں سے گزر گئے. ورنہ عمران خان صاحب کا وزیر اعلیٰ عدم اعتماد کا ووٹ لیتا پھرتا اگر یہ الیکشن ہو جاتا تھا. یہ اس پروسیس کو چلنے دے, انشاءاللہ تعالی اس میں مزید بہتری آتی جائے گی. میں اب آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں جس کیس میں مجھے آج بلایا ہوا ہے. یہ
कोई तकरीबन इसके लिए मैं 16 दिन जेल भी काटी। मेरे ऊपर एक FIR हुई। मैं इस्लामाबाद से आ रहा था और चूंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक कारवान चला हुआ था सिंध से और मैंने उसकी हमायत का ऐलान किया था, मेरे कहा कुछ भी हो जाए हम मौलाना के साथ लाहौर से चलेंगे। इन्होंने मोटरवे पे मुझे रोक के गिरफ्तार कर लिया। मैंने कहा भाई FIR दिखाओ। मैं कहा कोई सीनियर अफसर ले आओ। वो बेचारे मार्केट से पुलिस वाले थे, किसी की बेल्ट ही नहीं पूरी आ रही थी। मुझे लगता है जल्दी में उजलत में दूसरे की बेल्ट बांध आए हैं, किसी के लगता था ट्राउजर किसी और की बांध आया है, उधर आके वो लेसेस बांध रहे थे। मुझे इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मैं 12 अक्टूबर 2000 को जब मैं यहाँ पर बार में अपने वकला के साथ बैठा था, मैंने बात की। उन्होंने मेरे ऊपर सवाल किया, जियो के एक नुमाइंदे ने, कि जी ये एक्सटेंशन के बारे में आपकी क्या राय है। मैं कहा जी एक्सटेंशन का कोई कानून नहीं है, आइन में इसकी प्रोविजन नहीं है, कानूनी हैसियत ही नहीं है एक्सटेंशन की। इस बात पे FIR कर दी। बाद में वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस खोसा साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी इस बात पे एक्शन लिया। उस फिर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट को बुलाया गया, पार्लियामेंट से भीख मांग कर वोटिंग हुई, फिर एक कानून बना। मेरा भी तो यही बात थी कि जी कोई भी आइन के अंदर इसकी प्रोविजन नहीं, आइन इजाजत नहीं देता, कानून इजाजत नहीं देता, एक्सटेंशन कहां से होगी। उस पर मेरे ऊपर केस बन गया, मगर जस्टिस खोसा साहब ने उस बात को साबित कर दिया कि ये बात गलत है कि एक वजीर आजम एक लेटर के जरिए किसी बंदे को एक्सटेंशन दे दे और 2 हफ्ते बाद वो लिख दे कि जी ये लेटर मैं कैंसिल करता हूं, तो वो ना एक्सटेंशन रही तो ना उसका कोई मसला रहा। ये बात थी, मेरे ऊपर केस बन गया। उधर ये जब मैसेज जाता है तो उस पर कानून साजी भी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जवाब मांगता है। ये केस है, सियासी केस है, इंशाअल्लाह ताला इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये बर्दाश्त करेंगे, मुकदमे बर्दाश्त करेंगे, नेब के केसेस बर्दाश्त करेंगे। और आज मेरा ख्याल है बगावत के 5-7 मुकदमे हैं। मैं वो शख्स हूं जिसने परेड ग्राउंड में इस मुल्क के वफा का हलफ उठाया। सिविल सर्विसेज में मैंने वफा का हलफ उठाया। 2 दफा मैंने इस मुल्क का बतौर रुकन पार्लियामेंट इसके आइन का हलफ उठाया हुआ है, दफा का, इसकी अंदरूनी बैरूनी सरहदों का। मैं एक वाहिद शख्स हूं जिसने पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों में इसका हलफ उठाया है। लोगों ने तो एक दफा हलफ उठाया और आज वो परवेज मुशर्रफ आइन तोड़ के 2 दफा भागे हुए हैं और आ ही नहीं रहे। अल्लाह करे वो जिंदा आए ताकि उनको भी पता चले यार ये मुल्क वो वाला मुल्क नहीं है जब जस्टिस मुनीर से अयूब खान अपने फैसले ले लेता था। मैं अयूब खान के मुतल्लिक बात करता हूं तो उसका पता जो आज फेडरल मिनिस्टर है वो मानसरा जिला मानसरा की तमाम सुई गैस की बिजली की स्कीमें बंद कर देता है। मैंने कहा जी ताड़ा जोर इत्थे तक ही चल सकता है, मगर अयूब खान की भी एहसासों का पूछेंगे, जनरल आसिम बाजवा के एहसासों का भी पूछेंगे और जनरल आसिम बाजवा से ये पूछेंगे। आपके सामने CPEC का एक चार्ट लगा हुआ है, एक मैप लगा हुआ है, काशगर से गवादर है, CPEC को आप देख रहे हैं, मगर पर्दे के पीछे एक चार्ट आपके पास एक नक्शा लगा हुआ है जिसपे पनामा के भी कुछ रूट्स बने हुए हैं और आप उन रूट्स से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कहाँ एक जमहूरी हुकूमत को रोका जाएगा, कहाँ उसको टोल की पर्ची दी जाएगी, कहाँ उसकी गाड़ी को पार्किंग में लगाया जाएगा, कहाँ उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग जज लगाया जाएगा, कहाँ उसके ऊपर पनामा केस बनेगा, कहाँ उसको 7 साल सजा दी जाएगी। ये रूट के मुतालिक भी आपसे एक कौमी कमीशन पूछेगा। आसिम बाजवा साहब, पनामा की हकीकतों से आप आशना हैं कि आप आर्किटेक्ट हैं उसके, आप पनामा में बड़ा मेहनत की हुई है आपने कि कैसे एक वजीर आजम को घर भेजेंगे, कैसे उससे एक्सटेंशन मांगेंगे, वो नो करेगा और कैसे रहील शरीफ साहब फिर मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ये सारी चीजें आसिम बाजवा के पास इस वक्त रिकॉर्ड में हैं। ये भी उनको जवाब देना पड़ेगा। पीजे का जवाब तो चेयरमैन नेब ले लेगा, नेब का इदारा कोई भी ले लेगा कि इतना बड़ा बिजनेस कैसे आपने बनाया। उसके साथ साथ आपको पनामा की हकीकतों से भी पर्दा उठाना पड़ेगा अगर आपने मुल्क से भागना नहीं है तो। और बोलें जी। अच्छा, ये जो है आपको क्या लगता है कि इसमें आप बगावत के हवाले से आपका जो मौक़िफ़ है उसकी जीत होगी? कौन सी बगावत? ये जो
बगावत का आपने निगरानी की है, मैं से क्या उम्मीद है आपको? गुजरांवाले में भी एक बगावत केस है, यहाँ भी है, कराची में भी एक बना था। भाई साहब ये केसेस जिस दिन फ्लाइट नामवार हो चुकी है, लैंड करेगी, केसेस भी लैंड जाएंगे। ये सियासी केसेस हैं, इनके पीछे एजेंसियां काम कर रही हैं। ये मेरे दोस्त खड़े हैं, एजेंसी वाले नाराज ना होना भाई, आपकी ड्यूटी है, मैं आपको पहचान जाता हूँ, स्पेशल ब्रांच से भी एक आया हुआ है। आजकल आईबी बड़ी एक्टिव हुई है, स्पेशल ब्रांच के एक बंदा इधर खड़ा है, आईबी के 2 खड़े हैं, आपस में ये एतमाद नहीं है। आईएसआई का भी एक बंदा खड़ा है, बेचारा जरा उसको को बाल शाल बड़े रख के आया करे यार, पता हो जाता है। जब मैं पहचान लेता हूँ एक्सरे इस तरह का है, और ये 3 एजेंसियों के तो मैंने पहचान लिया, स्पेशल ब्रांच, आईबी, आईएसआई, मगर आईबी के 2 क्यों आए? आपस में एतमाद नहीं है। पंजाब और कर रहा है, फेडरल और कर रहा है, क्यों जी? ठीक कह रहा हूँ कैप्टन साहब, आप एक किताब भी लिख रहे हैं जी। उसका कोई एक पन्ना शेयर करते हैं, आप कह रहे थे नहीं, वो किताब को मैंने अगर शेयर किया सिर्फ अपने वकीलों से करता हूँ कि ये नोट्स हैं, देख लेना। वो वक्त से पहले शेयर नहीं करूंगा। उसमें अयूब खान भी है, उसमें ज़ियाउल हक साहब भी हैं, उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब भी हैं, उसमें महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट भी है, उसमें पाकिस्तान के आइन के साथ होने वाली ज्यादतियां भी हैं, उसके साथ उन लोगों की जायदादें जिनके बाप वॉल्टन पे आए थे तो नंगे पांव थे, आज अरबपति हैं, और रात को वो बैठते हैं तज्जिया नगार, दफाई तज्जिया नगार। भाई आप दफाई तज्जिया नगार हैं, कौम को बताएं सियाचिन में क्या हो रहा है, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, समंदर की हदों पे क्या हो रहा है, फजा की हदों में क्या हो रहा है। वो घर वाले भी कहते हैं बाबा जी जाओ कोई 3-4 घंटे टीवी ते लाते, साढ़ा भी घर सुन रहे। घर वाले उनको निकाल के भेजते हैं, वो हमारे दफाई तज्जिया निगार हैं, और अपने नामों के साथ जब अपनी कौम लिखते हैं फिर मुझे शर्म आती है यार। हाँ मैं कह दिया। हाँ और कोई सवाल लिख के ले आया करो, मजा है, कोई जवाब देने का भी मजा है, क्यों जी? कटो जी। थैंक यू वेरी मच सर। सर एक प्लीज शाकिर रमान हम सर हम चलाते हैं, मैं नहीं भेजता बड़ा काम करते सारे कोर्ट रिपोर्टर भी साढ़े ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੇ ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਰ ਭੇਜ ਥੋੜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਆਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਕਰਦਾ ਸੀ 321 36 36